department focus on medicine price and drug abuse. To begin with, each one of us is aware the issue regarding drug abuse in Ladakh, which is said to be increasing day in and out, which is a major concern among the youth. To further elaborate, may I please invite Mumtaz Ahmed, Assistant Controller Drug, Kargil, for a welcome speech. Good afternoon to one and all. Respected teaching staff, non-teaching staff, dear students. It's my pleasure to welcome you all here today in this awareness program of Ladakh Price Monitoring and Associate and the Drug Control Department. You know that this program is mainly related to the prices of the drugs. With this awareness program, you will understand whether the prices of the drugs available in the market is as per the prices, as per the rate fixed by the government, and if you find any violations in the prices of the medicines, then how and where to file your grievances or complaints. So in more detail will be shared by our project coordinator and field investigator of Ladakh Price Monitoring and Resources. I'll highlight little about price monitoring and resources and its parent body, that is National Pharmaceutical Pricing Authority, was established by the Government of India under the Ministry of Chemicals and Fertilizers. Again, a function of formulations. Actually, these are the essential medicines. And at the same time, the BPA has also a role in ensuring the availability of affordable medicines to the masses, conducting awareness to the general public, and detecting any violations in the prices of the medicines. So, in order to achieve all these objectives, all these in each states and duties under the name price monitoring and resources. So, with this, I once again welcome you all. Thank you. Next, we have to invite Nazia Kausar, field investigator, Ladakh. May we please invite you on the stage to share your votes with the students. Respected Assistant Controller Drugs, Ma'am Nasreen Balu, and Assistant Controller Drugs, Kargil, Mumtaz sir. My name is Price Monitoring and Resources. आज जितने भी मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस हमारे हिंदुस्तान में बनते हैं, उसके रेट को ये मॉनिटर करते हैं, प्राइस को फिक्स करते हैं और रेगुलेट करते हैं। तो अब ये अथॉरिटी जो है ये कैसे करती है काम अपना, तो ये जो है अथॉरिटी है ये हम लोग फील्ड लेवल में काम इसका इस तरह से करते हैं। एक ऑर्डर पास किया है गवर्नमेंट ने, DPCO 2013 होती है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013। इस ऑर्डर के तहत हम लोग जितने भी लोग कैसे करते हैं काम कि गवर्नमेंट ने एक यूनिट इस्टेब्लिश किया है हर स्टेट में। ये यूनिट जो है क्या करते हैं, ग्रास रूट लेवल पे जाके जो भी सेंटर का काम और यूपी का जो कनेक्शन है इसको लिंक करते हैं। अब ये जो यूनिट है ये हर स्टेट में इस्टेब्लिश किया है। तो हमारा लद्दाख प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट जो है 22 नंबर पे आते हैं और ये जो है 9 फरवरी 2022 में इस्टेब्लिश हुआ था। हमारे 1950 में आया था। उस टाइम पे जितना भी जो हमारे अभी मेडिसिन हम यहाँ पे मिल रहा है वो की बल्क जैसे कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल यानी कि वो टैबलेट को फिक्स नहीं करता था, वो रॉ मटेरियल के हिसाब से प्राइस को फिक्स करता था। अभी उसके बाद रेगुलेट होने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको अमेंडमेंट करते करते ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 वाले फॉलो करते हैं। इसमें गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक 3 कैटेगरी रखा, शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन, नॉन शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन।
पीछे पड़ जाते हैं। तो ये ख्याल रखना चाहिए कि मैंने आज ले लिया, इससे आराम होता है, फिर बार बार ले लिया, जब उसका रेजिस्टेंट हो गया तो उससे थोड़ा हाई डोज का ले लिया। तो इसी से बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगी कि इसी चीज़ से आहिस्ते आहिस्ते आप लोगों का नशे का, जैसे कोई आराम मिल रहा है तो दवाई लेते लेते जाएंगे तो उसका थोड़ा रेजिस्टेंट बढ़ गया, फिर उसके बाद आपको और उसके हाई डोज की ज़रूरत पड़ गई। तो ऐसा अभी तो है नहीं कि केमिस्ट पे तो रेगुलेट होता है। आप लोगों को इस चीज़ का मैं बताते जाऊं कि हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स और शेड्यूल H1 का रेगुलेट होता है दुकानों पे, तो वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको दवाई बिल्कुल नहीं मिलेगा वो, ठीक है। वो तो कभी घर में कोई हो या कहीं से आप मिसयूज़, अगर आप लोगों के दोस्त में या कोई फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव में ऐसा कोई मिसयूज़ कर रहा है तो आप लोग अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को बताइए कहीं कुछ कर रहे हैं ना। तो वो ऐसा नहीं है, छुपाने की चीज़ नहीं है। बुरा भी लगे तो आप लोगों को एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए, कोई ऐसी बुरी चीज़ में पड़ रहा है ना। तो ऐसे छुपाना नहीं चाहिए कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है तो मैंने इसको छुपा के रखा, कहीं सालों बाद आप पढ़ लिख के कुछ बन गए, बेचारा आपका दोस्त वहीं पड़ा रहा हुआ है ना। तो आप लोगों को ये चीज़ आपके रिलेटिव्स या उसके पेरेंट्स या उसके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए कि आपका कोई फ्रेंड किसी चीज़ में या कोई डिप्रेशन में है, कोई ऐसे आजकल बच्चों को बहुत बहाने होते हैं ये चीज़ करने के लिए, है ना। बहुत बहाने ढूंढते हैं, मुझे टेंशन हो गया तो मैं एक सिगरेट पी लेता हूँ, एक से क्या हो जाएगा, है ना। मुझे टेंशन हो गया, ये हो गया, कोई फैशन के लिए पी लेता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों से आप लोग अवॉइड कीजिए। आप लोगों को पढ़ने का टाइम है, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, घर का काम भी करना चाहिए। घर का काम भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। अभी आप लोग जापान में देखिए, बच्चों को पहले सफाई कराते हैं वहाँ, ये सब स्किल्स है, स्किल्स। तो ऐसी चीज़ों से पढ़ने से अच्छा है आप लोग स्किल्स सीखिए, है ना। अपने आप को स्किलफुल बनाइए। खाना बनाना भी स्किल है, झाड़ू मारना भी स्किल है, और बहुत सारे स्पोर्ट्स भी आपका स्किल है। ये सारी चीज़ें स्किल है, बुरी चीज़ नहीं है ना। तो अपने आप को स्किलफुल बनाइए। कुछ भी खेती बाड़ी करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ हर चीज़ में आप लोगों को आगे जाना चाहिए। बाकी इन चीज़ों में अगर कोई पढ़ रहा है तो आप लोग डिपार्टमेंट को या इन्फॉर्म कीजिए या पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। Fruitful and informative, and we hope each one of you will take a serious note. Thank you once again. Now we request all of you to kindly join us for a tea break followed by lunch. सुमैया ज़हरा। तो क्या कहेंगे, आज यहाँ करगिल की डिग्री कॉलेज में एक प्रोग्राम रखा गया था ड्रग्स को लेके, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में कि ऐसे प्रोग्राम्स हमेशा होते रहने चाहिए, क्योंकि इस प्रोग्राम की वजह से, ड्रग्स के बारे में जो प्रोग्राम होते हैं उनके वजह से बच्चों को पता चलता है, जो टीनेजर्स है, जो अनअवेयर है, उन्हें पता चलता है कि ड्रग्स कौन सा चीज़ है और ड्रग्स की वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो आने वाले दिनों में, अगर आने वाले मतलब टाइम में अगर ऐसा ड्रग्स का प्रोग्राम हम हमेशा रखें तो बहुत अच्छा होगा स्टूडेंट्स। तो इस प्रोग्राम में सबसे आपको क्या अच्छा लगा जिसमें कि लोगों को जो है यहाँ पे काफ़ी सारे जो ड्रग्स के बारे में बताया गया है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे, सबसे अच्छा क्या लगा आपको इस प्रोग्राम में? मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रीफली समझाया जाता था। जैसे कि हमें कुछ दवाइयों के बारे में नहीं पता होता, यानी कि ड्रग्स के बारे में नहीं पता होता है, उन्हें ऐसे ब्रीफली समझाया गया कि हमें ठीक से समझ में आए। और जो हमें लगता था ये सही है, हमें जैसे पैरासिटामोल जो हम एकदम ले लेते थे, जैसे सर में दर्द होते, वो भी एक तरह का ड्रग्स है, जो मतलब अगर आप ज़्यादा लेते हो उससे भी नशा हो सकता है। इसी वजह से इन सारी चीज़ों को उन्होंने ब्रीफली भी समझाया। तो यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग ड्रग्स से दूर रहें और इन चीज़ों से अवेयर रहें, और जितना हो सके इन प्रोग्रामों को ठीक से, मतलब आप लोग कोशिश करें कि आप ठीक से इन्हें सुने और इन पर आप ये भी करें, इन पे आप अमल भी करें। स्कैम हुआ है, तो इसके क्या मेन एम्स ऑब्जेक्टिव्स था? हाँ, तो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स यही थे कि जो इसमें ड्रग का जो
एडिक्शन बढ़ रहा है लद्दाख रीजन में, तो उसमें हमने इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके हमने लोगों को, ये स्टूडेंट्स और टीचर्स को यही बताया कि केमिस्ट की दुकानों से कैसे आप दवाई जब ख़रीदते हैं तो उसमें कैसे आप ऐसे एज ए मिस यूज़ या अनइंटेंशनली कैसे आप लोग इससे एडिक्ट हो सकते हैं, तो उसको अवॉइड कीजिए। कैसे आप लोग केमिस्ट से जब दवाई ख़रीदते हैं तो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन पे लेना है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दवाई लेना भी नहीं लेना है। तो वो सारा कुछ हमने स्टूडेंट्स को बताया इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए से। थैंक यू।